Welcome back students. Now the last chapter of the unit 3 is configuring server for file sharing. There are various servers on Linux from which file can be shared. Some of them as NFS, network file system, Samba and the FTP. We will see one by one. First is our NFS. What is NFS? NFS is nothing but the network file system. NFS was developed by Sun Microsystems for use on its Unix based workstations. Then it is a distributed file system. Next is it allows users to access files and directories located on remote computers. Data potentially stored on another machine. So data एक जगह पे रहेगा, वो फाइल शेयरिंग डायरेक्टरी और फाइल शेयर पे डाल देंगे और क्लाइंट्स और यूजर्स उसका एक्सेस करेंगे. Then NFS builds on a open network computing remote procedures calls, that is nothing but one RPC system. Mechanism for storing a files on a network. Generally हम लोग लोकल डिस्क पे फाइल स्टोर करते हैं, बट बाय यूजिंग NFS we will store our files over the network. It allows the users to share a directory. एक कॉमन शेयर पॉइंट रहेगा जहाँ पे सब अपना डेटा स्टोर करेंगे. सो आर्किटेक्चर इसका दिस वे NFS आर्किटेक्चर वर्क्स आउट. दिस आर लोकल नेट, जो भी नेटवर्क है वो यहाँ पे अपना NFS सर्वर आ गया और दीज आर द क्लाइंट्स हु कनेक्टेड टू अ सर्वर वाया टू द NFS सर्वर. यहाँ पे एक शेयर डायरेक्टरी रहेगा कौन सा भी, ओके, और इसको ओवर द नेटवर्क क्लाइंट्स उसको एक्सेस करेंगे. डेटा जो भी चाहिए वो वहाँ से लेंगे, स्टोर करेंगे और वहाँ पे अपना डेटा रख देंगे. सो दिस वे ओवर द नेटवर्क फाइल शेयर किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है. सो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द NFS. Major advantage of NFS is it is a stateless server and client architecture. Then server can be rebooted and user on a client might be unaware of the reboot. Third is client server distinction occurs at the application or user level, not at the system level. जो कुछ भी होता है वो सब एप्लीकेशन और यूजर लेवल पे ही होगा. Then last is it is highly flexible, so we need to be disciplined in our administration and configuration. So मतलब जो कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस हो गया NFS सर्वर पे वो ऑटोमेटिकली फटक से रिफ्लेक्ट होता है. सो वॉट एवर वी आर डूइंग ऑन मतलब चेंजेस करना है, सो एवरी टाइम वी हैव टू बी सम डिसिप्लिन्ड. So these are the 4 advantages of NFS. Next disadvantages are, first major disadvantages is it's using a the RPC authentication, so it can be easily spoofed. So anyone can use your identity and enter into your system. So next is file system, data is transmitted in a clear text. So this is also a major disadvantage because data could be copied. क्लियर टेक्स्ट की वजह से anyone can use your data for मतलब कॉपी कर सकता है या anyone use for any purpose. नेक्स्ट इज नेटवर्क स्लोअर देन अ लोकल डिस्क. बिकॉज अगर हम लोग लोकली सिस्टम पे फाइल स्टोर कर रहे हैं तो हमेशा वो फास्ट रहता है, बट ओवर द नेटवर्क करने जाएंगे तो इट कैन बी एनी इश्यूज. नेटवर्क कभी जैम रहेगा, कंजेशन या डाउन भी रहेगा, सो हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम स्लो हो जाता है. एंड लास्ट इज योर कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिक्योरिटी इश्यूज. सो दीज आर द 4 disadvantages of the NFS. So now next is configuring NFS 4. So there are various versions of a NFS 4 and various versions of a NFS 1, 2, 3, and now it is a in RHEL 6 it is a NFS 4. Also we have in our curriculum as a NFS 4. So we will see how to configure and various setting steps for NFS 4. NFS is most common method used to share files across a Linux and Unix system. NFS functionality is offered through the kernel. जो कुछ भी होता है that is through a kernel. So it is fast. This makes it very fast solution.
It is distributed file system. Distributed file system that enables local access to remote disk and file systems. NFS follows standard client server architecture. So अभी जो कुछ भी NFS में है, that is the most important is sharing a file across the networks. So NFS allows host based sharing. होस्ट बेस्ड शेयरिंग मतलब क्या रहता है? एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ और डिनाई एक्सेस टू होस्ट एंड नॉट इंडिविजुअल यूजर्स. ओके, सो once a host has established a connection, there isn't much to do configure access for individual users. मतलब एक बार कनेक्शन हम लोग का सेट हो गया NFS में, सो इट्स अ कंटिन्यूस रहेगा जब तक हम लोगों का वहाँ पे होस्ट रहेगा तब तक. इट्स नॉट अ इंडिविजुअल यूजर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको. बाय डिफॉल्ट अ यूजर ऑन एन NFS क्लाइंट विल एक्सेस फाइल्स विद द सेम यूजर आईडी ऑन द NFS सर्वर. उसके लिए सेम यूजर आईडी रहेगा. ओके, सेम यूजर आईडी रहेगा तो क्या होता है? देयरफॉर NFS works best in environments where user identities are shared over the network by using such as LDAP. LDAP वगैरह यूज करके हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू यूज NFS फाइल सिस्टम. NFS v4 is offered on Red Hat Enterprise Linux 6 and newer version. This version provides some significant improvements over the previous versions. अभी क्या क्या improvements है we will see. Filtering NFS v4 in firewall is much easier than the past जो previous versions थे उनमें उनसे filtering NFS 4 is easy. Filtering NFS 4 in firewall is easy. NFS v4 has better security options including the option to use Kerberos. So यहाँ पे Kerberos भी आ गया. फर्स्ट तो हम लोग का फिल्टर इम्प्रूव हो गया. सेकेंड में बेटर सिक्योरिटी ऑप्शन Kerberos भी आ गया. एंड थर्ड इज NFS v4 offers the option to make a sudo root mount. मतलब which allows users to mount everything to which they have access by issuing one mount only. सिर्फ माउंट का यूज करने से ही ऑटोमेटिकली हम लोग को उसमें से एक्सेस मिल जाता है. सो दिस इज और NFS सेट करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट इज etc/exports फर्स्ट स्टेप में. ओके, विच कंटेन्स द शेयर यू वांट टू ऑफर. जहाँ पे शेयर करना है वो देना है. एंड देन सेकेंड में करना है, क्या करना है? enable NFS service. Enable NFS service. So this way हम लोग ये NFS कॉन्फ़िगर कर देते हैं सिस्टम पे. On a server side component of NFS consists of the physical disk that contains file systems want to share and several daemons that make these shared file systems visible to and available for us by client systems on the network. The next, on the client side of the equation, NFS client simply mounts the export file systems. client side पे सिर्फ माउंट होता है फाइल सिस्टम जो भी है वो लोकली, जस्ट एज लोकल डिस्क वुड बी माउंटेड. मतलब वो लोकल डिस्क माउंट किया जैसा ही यूज हो जाएगा उसमें से. सो टू इंस्टॉल द NFS कमांड है yum install NFS utils. सो दिस वे NFS हमारे सिस्टम सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा. देन वी विल कॉन्फ़िगर इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. सो नाउ वी विल सी ऑन दिस टर्मिनल creating NFS shares. So now moving to the next terminal.
So now we will create here a directory and offer access to that directory as an NFS shares. So now we will create a directory under slash mkdir slash data. Okay, now we will give a local permissions to make sure that users have access to shares. So now we will give a permission as जो भी डेटा क्रिएट किया डायरेक्टरी उसको chmod 777/data. So now if I check, so अभी डेटा को पूरा परमिशन है, so that उस पे रीड राइट सब कर सकते हैं एडिटर. और हम लोग एडिट करेंगे फाइल etc एक्सपोर्ट्स. etc एक्सपोर्ट से रीड करके वो माउंट कर देगा जो भी शेयर फोल्डर है, वो शेयर जो करेंगे हम लोग वो. सो उसमें हम लोग etc एक्सपोर्ट्स में एंट्री डाल देंगे उसका स्लैश डेटा इंसर्ट स्लैश डेटा स्टार, उसके अंदर जो भी रहेगा rw कॉमा no underscore root underscore squash. I will explain you all these terms. What are all this no roots, no underscore root underscore squash and rw and everything. First we will see how to create a share. Then I will save this file and come out of it. So now we will check whether the NFS services are running or not. So उसके लिए कमांड है status service --- status all grep NFS. So NFS is running. और हमेशा याद रखना ये इसके लिए RPC bind भी रनिंग लगता है. सो RPC bind है कि नहीं, दैट वी विल ऑल्सो चेक. RPC bind. सो RPC bind इज ऑल्सो रनिंग. अगर RPC bind नहीं रहेगा तो फिर डेटा का वो जो शेयर क्रिएट करना है दैट विल गेट अ प्रॉब्लम. सो नाउ वी विल रिस्टार्ट द सर्विस. NFS सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे. सर्विस NFS रिस्टार्ट, बिकॉज हम लोगों ने वो डेटा फाइल का स्लैश डेटा का एंट्री डाल दिया है etc एक्सपोर्ट्स में. सो उसके लिए हम लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया. देयर इज अ एरर, सो आई विल चेक इट आउट. /etc exports. Yes, there is a error. squash insert. So now I will save this file and again restart the NFS service. So now everything is okay. So now NFS is also running properly. So now I will make an entry by check config NFS on. एवरी टाइम जब भी सर्वर बूट होगा ऑटोमेटिकली अपना NFS स्टार्ट होगा. NFS ऑन. सो अभी ये एंट्री हो गया. सो दैट सर्वर रिबूट हुआ तो भी हम लोग को टेंशन नहीं है. सो नाउ वेरीफाई करना है कि वेदर हम लोग का शेयर पॉइंट बना है कि नहीं. सो उसके लिए कमांड है शो माउंट unt -e लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोगों ने अभी लोकल ही डाला है सब. सो नाउ सी एक्सपोर्ट लिस्ट स्लैश डेटा को हम लोगों ने डाल दिया है शेयर के लिए, विच अलाउज ऑल एक्सपोर्टेड शेयर ऑन अ लोकल कंप्यूटर. शो माउंट कमांड. सो नाउ दिस इज डन कि हम लोगों का अभी ये NFS शेयर क्रिएट हो गया स्लैश डेटा का. सो नाउ वी विल सी कि ये अभी जो ऑप्शंस थे, क्या क्या ऑप्शंस थे, दैट वी विल सी ऑन. जो हम लोगों ने ऑप्शंस डाले थे दैट RW क्या करेगा, अलाउज बोथ रियल एंड राइट रिक्वेस्ट ऑन द NFS वॉल्यूम. NFS वॉल्यूम पे रीड राइट बोथ हो जाएगा. रीड एंड राइट का परमिशन आ गया NFS वॉल्यूम पे ऑन NFS वॉल्यूम. बाद में आता है RO क्या रहता है, ओनली रीड्स ऑन NFS शेयर्स. ओनली रीड ऑन NFS शेयर.
देन नेक्स्ट आता है असिंक। असिंक में क्या करता है, इट improves द परफॉर्मेंस बाय अलाउइंग द सर्वर टू रिप्लाई टू रिक्वेस्ट before changes to the share are committed to storage. Using this option is faster but also increases the chance of losing data. So sync करने के लिए पहले ही बता देने का। लेकिन ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जनरली ज़्यादा यूज़ होता है RWRO एंड नो रूट स्क्वाश। अभी जो हम लोगों ने देखा था नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाश, ये ऑप्शन क्या कर देगा, allows user root from an NFS client to work as root on the NFS server as well. This should not be used because of security implications. So now next is FSID. FSID क्या करेगा, it gives the each NFS share a unique ID. Unique ID दे देगा, which makes it easier to track. This option is especially important in high availability of clusters. वहाँ पे ये ज़्यादा ऑप्शन यूज़ किया जाता है FSID जब भी चाहिए तभी। नेक्स्ट इज ऑल अंडरस्कोर स्क्वैश। ऑल अंडरस्कोर स्क्वैश, दिस इज क्या है, मैप्स द यूजर आईडी ऑफ एनी यूजर टू द एनोनिमस यूजर्स विच एंश्योर्स दैट द NFS यूजर हैज मिनिमम राइट्स ऑन द सर्वर। देन नेक्स्ट इज unknown UID। unknown UID क्या करता है, इट स्पेसिफाइज टू विच यूजर टू मैप anonymous यूजर रिक्वेस्ट। दीज आर द ऑप्शन जो हम लोगों ने स्लैश ETC एक्सपोर्ट्स में यूज किए थे, और ये अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट हम लोग जैसे सिस्टम पे चाहिए वैसे सेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माउंटिंग NFS share। After creating an NFS share on NFS server, you can access it from a client. To do this, just mount it as if it were a regular file system. हमेशा हम लोग को माउंट करना पड़ेगा to access that from client side. However, for mounting an NFS share, you will need to include the name or IP address of the NFS server. Instead of the device name, you would normally use to mount devices. Their command is mount my NFS server :data/mnt। ये डिपेंड्स ऑन NFS का जो सर्वर का नाम है वो, और /data जो भी डायरेक्टरी रहेगा वो। देन मेकिंग NFS पॉइंट persistent। NFS share to be mounted automatically। उसके लिए अब ETCFS टैब में ये एंट्री डाल देना है, माई जो सर्वर का नाम रहेगा वो /data NFS अंडरस्कोर netdev 00। ये सब उस पर डाल देना है। अंडरस्कोर netdev क्या कर रहा है, दिस ऑप्शन ensures that your system waits until the network is up before making this point। So now we will see this on actual terminal, कैसे NFS शेयर को माउंट करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे, क्लाइंट मशीन पे करेंगे। ओके, अभी इसका IP क्या है, if config, यहाँ पे हम लोग का रेडी है। ओके, यहाँ पे इसका ID है 105। वी विल गो टू आवर क्लाइंट मशीन। नाउ यहाँ पे मैं चेक करता हूँ पहले मेरा माउंट पॉइंट्स क्या क्या है, शो माउंट -E, और जो 192.168.0.105, /data यहाँ पे मेरा माउंटेड है। ये मेरा शेयर पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। नाउ आई विल माउंट द शेयर ऑन लोकल मशीन पे। अभी ये मेरे लोकल मशीन पे मैं ये शेयर माउंट कर दूंगा बाय कमांड माउंट -T NFS। अभी इसका मेरा IP है 192.168.0.105 /data मेरे को माउंट करना है। ओके, और कहाँ पे करना है, /mnt /data पे, mnt के /mnt पे उसको माउंट करना है मेरे को। mnt इज
B is your already mounted. So now if I go to the MNT, it's already mounted, so it's mounted है. तो cd/mnt, तो यहाँ पे अभी दोनों फाइल दिख रहा है A एंड B. सो नाउ वी विल चेक ऑन सर्वर. ओके, सर्वर पे अभी मैं pwd हमें करंटली ऑन अ डेटा डायरेक्टरी ओनली. तो यहाँ पे मेरा दो फाइल है A और B. सो नाउ आई विल टच मोर फाइल्स C. ओके, सो नाउ यहाँ पे 3 फाइल बन गया. सो नाउ थर्ड फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे को दिखना चाहिए, ls-l. सी थर्ड फाइल इज कमिंग. सो नाउ दिस मीन्स मेरा शेयर बन गया है. यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे शेयर हो रहा है. सो नाउ इफ आई टच शिक्षक, सो शिक्षक नाम का फाइल यहाँ पे बन गया. सो नाउ इफ आई गो टू अगेन टू द मेरा क्लाइंट साइड सिस्टम जो है वहाँ पे गया मैं क्लाइंट सर्वर के पास, मतलब कौन सा भी रहेगा वो. सो यहाँ पे अगर मैं ls-l करता हूँ वापस, तो शिक्षक भी यहाँ पे आ गया. सो दिस वे ऑटोमेटिकली मेरा ये शेयर पॉइंट बन गया. सो यहाँ पे मैं डेटा में जो कुछ भी शेयर करता हूँ वो ऑटोमेटिकली मेरे क्लाइंट को वहाँ पे, मतलब मेरे क्लाइंट मशीन पे वहाँ पे ऑटोमेटिकली दिख रहा है. So now this way this work out. So now moving further with next, configuring auto mount. Auto mount is a service that mounts NFS shares automatically. Automatically mount करने के लिए auto mount use किया जाता है. In some cases, putting your NFS mounts in etc fstat works just fine. In other cases, it don't work well. So you will need a better way to mount NFS share. So उसके लिए auto mount use किया जाता है, जहाँ पे automatically mount हो जाता है अपना NFS. To configure it, we will need to take care of 3 different states. First is start the AutoFS service. Then edit the etc auto.master file. ये फाइल एडिट करना पड़ता है. एंड देन नेक्स्ट इज क्रिएट एन इनडायरेक्ट फाइल टू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट ऑटो माउंट टू डू. इनडायरेक्ट फाइल क्रिएट करना पड़ता है टू स्पेसिफाई व्हाट यू वांट ऑटो माउंट टू डू. सो दिस 3 स्टेप से हम लोग का ऑटो माउंट कॉन्फ़िगर हो जाता है, विच विल ऑटोमेटिकली माउंट्स आवर NFS share. So now we will see this on actual terminal. So अभी मैं क्लाइंट मशीन पे जाता हूँ. क्लाइंट मशीन पे कैसे ऑटो माउंट करते हैं that we will see. First of all, AutoFS should be installed, so that yum install AutoFS. AutoFS is already installed. So now we will check, restart the AutoFS service. Service AutoFS restart. Okay, now AutoFS is also started. Now we will check our auto.master generate किया है वो फाइल देखते हैं हम लोग. cat/auto.master. So see, यहाँ पे etc auto.master में directories are specified that automated should be monitor. /net is the directory which is monitor by a auto mount host mechanism. मतलब जो कुछ भी होस्ट उसमें ऑटो माउंट होंगे वो /net डायरेक्टरी पे ही रहेंगे. दिस मीन्स दैट इन /net mounts to hosts that have NFS shares available will be mounted automatically. जो भी NFS शेयर अवेलेबल रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ये इस पे माउंट हो जाएंगे. सो नाउ वी विल यूज द ऑटो माउंट /net directory to access an NFS share.
जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्लैश डेटा सर्वर पे क्रिएट किया है, वी विल एक्सेस दैट. सो नाउ ऑटो एफएस तो रिस्टार्ट हो गया हम लोग का. और सो नाउ वी विल क्रिएट यूज cd, go to that directory /net. यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज एन नॉर्मली एम्प्टी डायरेक्टरी रहता है. सो नाउ यहाँ पे वी विल एक्सेस आर नेम सर्वर, that is 192.168.0.105. okay, so now I am into a 105. see, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अभी यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ, डेटा डायरेक्टरी दिख रहा है मेरे को. सी, दिस इज विजिबल राइट नाउ. सो /net is used by AutoMount to give easy access to NFS server. Apart from the /net, अभी यहाँ पे हम लोग डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा पूरा क्या क्या है वो. सो नाउ सी, these are the file what we have created previously, वो यहाँ पे पूरा दिख रहा है. सो दिस इज माई करंट क्लाइंट सिस्टम पे हूँ मैं, दिस इज माई सर्वर. सी, ls-l. see, this is my server, main server, and this is my client machine. यहाँ पे मैं क्लिक करके पूरा वो देख रहा हूँ. so this way AutoMount can be configured. so now we will move further with our next topic, that is Samba.